Okay, so let's start today's class. Okay, so let me type one program. Okay, and this program is something that that share. Did you remember that share print share name stock name program? Okay, so let's do that again. Okay, let's do that again. So help Yes, me to write this program. So first I have to create one class. So class name is, let's say, printer. What is the class name? printer. 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 Okay, class printer. And then tell me, what is the method name here? Follow. Public Public void void share void Share. share name or Home. print name. चलो print print name डाल दो, ठीक है? name. Print name. Okay, print name, Hmm. and it needs input argument string name. Name. Okay, that's it. That's it. And here, what I'm doing, sys out that share name, okay, or that stock name plus name plus printed by, okay, printed by printed by बोलो Thread. thread Thread dot thread dot current current. dot Dot delete. get name. Okay, that's it. Okay, that's it. So now let's format this. Okay, so we have one test class, main method, and one printer class. Now I have to create a two threads and I want to execute this printer. Okay, but before we executing this, before we execute this, we need to create a thread. So how to create a thread? So let's create one thread class. Class Ah. my thread. Class My my thread. thread My Extends thread. thread. Extend from thread. from Thread. thread. Yes. Okay, then override here Run method. One method. public run Public public void void run run method. Okay, public void run method. Okay, and here it needs two things. One is private private string string Name. share their name. name. Okay, or stock name. Let's say stock name. Okay, Stock name. stock name, and then Object of printer. Private object of printer. printer. Private printer. P. Printer. Okay, Printer, yes. let's say printer. Okay, we need that thread needs two things. Okay, Yes. now here what constructor. So let's provide here constructor. Constructor. So few of the students are having confusion here. Okay, so that's why I'm repeating. Okay, that's it. Clear? Now Yes, sir. the next thing is let me format this. Next thing is this run method will call this. Okay, let's do this thing. Okay, so what we can do, printer. Okay, printer dot What? print name. Okay, print name, and provide this stock name. Okay, provide this stock name. Okay, now this stock will it will call to this print name, and it will provide the name, and it will print the stock name. Okay, that's it. Now what we can do, the next thing is, let's create my thread empty1 is equal to new my thread. It needs stock name. So what is stock name? Let's say Tata. Data. Okay, and then printer object. So we need a printer object, so create a printer object here. Printer p is equal to new printer. Okay, and this provide this printer object to the thread. Thread. And let's create a two threads, empty1 and Two. empty2. And then second thing is, let's say print empty2 will print RIL. Okay, Yes. RIL. Okay, now second thing is key, let's put here the share thread name. Okay, so इसको एक नाम दे दे thread को empty1 dot set name. Let's say इसका नाम है empty1. Okay, empty1, and similarly empty2 का नाम दे देते हैं अपन. ठीक है,
for better understanding. Clear? Now let's format this. Okay, so let's MT2 इस MT2 हाँ MT2 Sir, so MT2. इसमें किसी को अभी प्रॉब्लम लग रहा है? क्लियर? no ओके सो क्या होगा कि हमने अभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट भी करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट mt1 dot start and then mt2 dot start. ओके स्टार्ट. ठीक है, कर दिया. देन लेट्स रन. अभी क्या होगा यहाँ पे बेसिकली ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया. जैसे ही स्टार्ट हो गया देन इट विल ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगा जब भी उसको चांस मिलेगा और स्टॉक नेम वहां पे भेज देगा. क्लियर? ठीक है. सो सी हियर. yes Now let's run. Will it work or not? Stock name Tata printed by MT1. Stock name RL printed by MT2. Clear to all of you? Yes. Clear? yes Okay. Yes. ओके सो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे. So see what I'm doing here, let me try okay some other stuff. अब हमने ये थ्रेड टाटा इसको भेजा, ठीक है, ये नेम इसको भेजा. देन व्हाट आई एम डूइंग कि ये स्टॉक नेम ही मैं इसे भेज रहा हूँ प्रिंटर को. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्रिंटर नेम पे, ठीक है, स्ट्रिंग नेम. ओके स्ट्रिंग नेम. क्लियर? स्ट्रिंग नेम. और ये प्रिंट इसको ना ये निकाल रहा हूँ मैं अभी, इसे निकाल रहा हूँ अभी के लिए. ओके इसे निकाल रहा हूँ मैं. निकाल दिया. देन अभी इसको वैल्यू कौन देगा? इसको इसे वैल्यू कौन देगा? दैट इज द क्वेश्चन. गेटिंग माय पॉइंट? yes sir इसे कौन वैल्यू देगा? दैट इज द क्वेश्चन. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक सेटर मेथड डाल रहा हूँ. क्या डाल रहा हूँ? सेटर मेथड. हाँ तो ये अपना प्राइवेट स्ट्रिंग नेम. ओके तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेटर मेथड डाल रहा हूँ सिंपली. सो हाउ टू सेट पब्लिक set name. Okay public void set name name and then string name. Okay and then this dot name this dot name is equal to name name. Okay return type void name. Okay return type void. Okay clear? yes let me format this. ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, पहले मैं डायरेक्टली इसको इनपुट आर्गुमेंट ले रहा था और उसे प्रिंट कर रहा था. अभी क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली, मैंने क्या किया, नेम को सबसे पहले मुझे नेम देना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सी लेट्स अंडरस्टैंड. जिनको भी कंफ्यूजन है उनके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ. हमने कुछ नहीं किया, हमने एक नॉर्मल मेथड लिखी. अब उस मेथड का काम क्या है, नेम प्रिंट करना. जो भी नेम उसके अंदर होगा उसे प्रिंट करना. क्लियर? उसे प्रिंट करना. अब है क्या यहाँ पे कि वो नेम कहाँ से आएगा, हम तो इस इनपुट आर्गुमेंट नहीं ले रहे. ठीक है, समहाउ सम ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट हम क्या कर रहे हैं कि हमने सेटर मेथड दे दी उसको. अब इसके अंदर नेम कौन सेट करेगा? डेफिनेटली ये थ्रेड करेगा. समझो यहाँ पे आ गया. ओके यहाँ पे आने के बाद में प्रिंटर डॉट प्रिंट नेम करने से पहले हम क्या करेंगे, सेट नेम. और सेट नेम है उसके पास में, yes है कर दिया. और फिर सेट नेम करने के बाद में हम क्या करेंगे, printer dot print name प्रिंट नेम. ओके प्रिंट नेम. तो अभी समझो MT1 आ गया, MT1 रन हो रहा है, तो उसने क्या किया, टाटा लेके आया और वो प्रिंट क्या कर देगा, टाटा कर देगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट्स सी. समझा ना? किस किस को नहीं समझा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. बाकी लोग, ये 2 लोग छोड़ के बाकी बोलो. किसको नहीं समझा वो बोलो. सबको समझ में आया? हाँ रिवाइज करना. हमने क्या किया कि पहले हम डायरेक्टली इनपुट आर्गुमेंट भेज रहे थे इसके अंदर. ओके अब वैसे नहीं कर रहे, हम सेपरेटली मतलब अलग तरीके से सेट कर रहे नेम यहाँ पे इसके थ्रू, और फिर उसे प्रिंट कर रहे हैं. क्लियर? ठीक है. नाउ लेट्स रन. विल इट वर्क और नॉट? स्टॉक नेम टाटा. अरे कुछ गलत हो गया क्या? टाटा प्रिंटेड बाय MT2 और टाटा प्रिंटेड बाय MT1. टाटा ही प्रिंट कर दिया उसने, राइट? M1 M2 गेटिंग और नॉट. बट हमने तो RL भेजा था यहाँ पे, yes राइट? हमने यहाँ पे क्या भेजा था, MT2 को क्या भेजा था, RL भेजा था. बट हुआ क्या, टाटा ही मिला दोनों को. लेट्स रन अगेन.
अब क्या है, RIL by MT2 टाटा प्रिंटेड by MT1, दैट मीन्स अब करेक्ट चला, बट लास्ट टाइम कुछ उल्टा ही चला था, तो दिस इज कॉल्ड एज हाँ डेटा इनकंसिस्टेंसी। Inconsistency. क्लियर, मतलब Yes, sir. MT1 को क्या प्रिंट करना था, RIL, सॉरी MT2 को टाटा, Tata. टाटा, और MT2 के पास में क्या था, RIL, RL. ठीक है, मतलब MT1 के पास में था टाटा और MT2 के पास में था RIL, बट वो कोई कुछ भी प्रिंट कर रहा है। क्लियर, Yes, sir. अब Yes, इसको sir. बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं उसको, Data डेटा inconsistency. ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, इसको अवॉइड कैसे करेंगे, कैसे करते हैं हम अवॉइड इसको, Synchronized. हाँ? बोलो, ऑनलाइन Synchronized. ऑनलाइन वाले दे दिए आंसर, ऑफलाइन बोलो क्या करते हैं, हाँ सिंक्रोनाइज, क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज करेंगे तो आगे पीछे नहीं होगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स सी ये इनकंसिस्टेंसी क्यों हो रही है, लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन mt1.start, ओके, सो mt1 के अंदर क्या है, टाटा है, जैसे ही स्टार्ट मेथड होता है, शेड्यूल होता है थ्रेड, तो ये जो रन मेथड है, किधर की रन मेथड, हाँ ये कॉल हो जाती है, ठीक है, और ये रन मेथड क्या करती है कि डेफिनेटली ये स्टॉक नेम क्या है, RIL है, सॉरी टाटा है, MT1 के पास में क्या है, टाटा है, तो प्रिंटर डॉट सेट नेम क्या कर दिया हमने, टाटा टाटा, सेट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेम इज इक्वल टू क्या आ गया, सेट नेम इज इक्वल टू टाटा आ गया। टाटा। अब आपने प्रिंट नेम मेथड कॉल की, जैसे ही कॉल की तो ये मेथड कॉल होने लगी। अब ये प्रिंट जैसे ही करेगा ना, उसके थ्रेड पॉज पहले हो गया। वो दूसरे को चांस मिल गया, ये थ्रेड पॉज हो गया, समथिंग लाइक दिस, ओके, दूसरे को चांस मिल गया, किसको, MT2 को। अब ये प्रिंट होने से पहले ही MT2 ट्रिगर हो गया, ठीक है, MT2 ट्रिगर हो गया और पहले वाला पॉज हो गया। फॉर एग्जांपल पॉज हुआ तो MT2 स्टार्ट हुआ, अब MT2 में हमने क्या किया, रन मेथड एग्जीक्यूट की, रन मेथड में क्या हमने प्रिंट किया, RIL, मतलब RIL भेजा, अब वो RIL आ गया यहाँ पे, अब नेम की वैल्यू क्या है, RIL है, अब ये RIL भी प्रिंट हो गया, और जो पहला वाला पॉज था वो भी रिज्यूम हो गया, बट नेम की वैल्यू क्या है, RIL। RIL. दैट्स इट, ठीक है, क्लियर, दिस इज Yes. कॉल्ड एज अ डेटा इनकंसिस्टेंसी। Inconsistency. अब किस किस को इसमें कंफ्यूजन है, बोलो डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंदर, हाँ रेज योर हैंड, आकांक्षा गेटिंग, अक्षय, अक्षय पाटिल, अर्चना, Yes, sir. ठीक है, जो एब्सेंट हो गए कल परसों उनको नहीं समझ में आएगा। मीना गेटिंग और नॉट, महेश, मीना, Getting sir. ठीक है, ओके, सो इफ यू आर गेटिंग देन वी आर गुड, ओके, कर दो एक बार, करो, मुंह पे आ रहा है क्या, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। सो टू अवॉइड द डेटा इनकंसिस्टेंसी व्हाट वी कैन यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड, तो अभी इसको Synchronize सिंक्रोनाइज यूज कर दो, ओके, इधर नहीं, यहाँ पे प्रिंटर नेम पे, ठीक है, सिंक किधर का, ये सिंक्रोनाइज, ओके, यूज कर दिया। नाउ लेट्स सी अभी क्या होगा, एक थ्रेड एट अ टाइम इसको एक ही एक्सेस कर पाएगा, ओके, नाउ लेट्स रन, देखा टाटा को MT1 आ रहा है, RIL को MT2 आ रहा है, बिकॉज ओनली वन थ्रेड कैन एबल टू एक्सेस, जब तक वो एग्जीक्यूट होगा नहीं तब तक दूसरे को एंट्री नहीं मिलेगी उसके अंदर। क्लियर, Yes. फिर से एक दो बार करके देखते हैं, हाँ इज इट, ओ ये फिर भी हो रहा है, ठीक है, डेटा इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज दिखा ना, आपने एक ही मेथड को ये करा सर, सिंक्रोनाइज प्रिंट नेम हाँ को। वो तो हो गया सिंक्रोनाइज, क्या क्या, Yes. हाँ वो हो गया सिंक्रोनाइज, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर Block कि synchronized. हाँ इसको तो सिंक्रोनाइज कर दिया, बट नेम को तो नहीं हुआ ना, Yes. राइट, Yes, sir. पहला थ्रेड आ गया, ठीक है, उसने पहले सेट नेम कॉल कर दी, सेट नेम कॉल करने के बाद में क्या हुआ, उसने नेम कर दिया समझो टाटा, और हो गया पॉज। अब पॉज होने के बाद में उस यहाँ तक आया नहीं, आ भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा आ गया, उसने नेम कर दिया क्या, RIL कर दिया, उसने टाटा का RIL कर दिया, टाटा का RIL कर दिया, अब वो एग्जीक्यूट होगा, उसने लॉक लिया, उसने एग्जीक्यूट कर दिया RIL, दूसरा है उसने भी एग्जीक्यूट कर दिया RIL। क्लियर, Yes. क्या करना पड़ेगा, तो ब्लॉक में लिखना पड़ेगा दोनों मेथड को, दोनों मेथड को सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, Yes. बट इट इज वेरी हेक्टिक, राइट, ब्लॉक में लिखो परफॉर्मेंस पूरा ही डाउन हो जाएगा, दो दो मेथड आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो, राइट, Yes. है ना, दो दो मेथड आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो। सो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है, तो एक तो रीएंट्रेंट लॉक है करके, ठीक है, दूसरा है अपना थ्रेड लोकल, कौन सा है, थ्रेड लोकल, अभी थ्रेड लोकल ही पढ़ेंगे अपन, ओके, थ्रेड लोकल ही पढ़ेंगे, बट आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया,
राइट? यस यस Yes, sir. ठीक है। सो इसको सिंक्रोनाइज भी काम नहीं कर रहा है इस मेथड को, क्योंकि ये खुद हो, ये तो हो गया सिंक्रोनाइज, बस इसका क्या, इसमें प्रॉब्लम है। सो टू अवॉइड दिस वी कैन गो फॉर द थ्रेड लोकल। अब और एक एग्जांपल लेता हूं मैं रियल टाइम। ओके, थोड़ा सा चलो ठीक है। सी है, तो अब क्या हुआ, क्लास, ओके समझो अपना क्लास है, कोई कंट्रोलर है, वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से लॉगिन, ओके लॉगिन कंट्रोलर है। ये एग्जैक्टली नहीं होगा, बट मैं आपको थोड़ा सिनेरियो वाइज बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे हो सकता है और डेटा एनालिसिस पे। यस लॉगिन कंट्रोलर ऐसा कुछ तो भी है, वहां पे आ रही रिक्वेस्ट, वहां पे क्या आ रही है रिक्वेस्ट। आपने ऊपर ऐसा लिखा स्ट्रिंग यूजर आईडी, क्या लिखा आपने, स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है। लॉगिन, ओके पब्लिक समझो, चलो स्ट्रिंग, एक लॉगिन मेथड है। ओके सो फर्स्ट टाइम क्या हो, जैसे पहला थ्रेड आया ना, तो वो यूजर आईडी की वैल्यू लेके आया। क्या लेके आया वो यूजर आईडी की वैल्यू, पहला थ्रेड जो आएगा जिसने लॉगिन किया, ठीक है। सो सी अभी थोड़ा सा और बताता हूं मैं, एक जब भी आप लॉगिन करते हो स्प्रिंग एप्लीकेशन को, तो यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे रहता है, कहीं ना कहीं तो भी रहता होगा, गेटिंग। तो जब आप लॉगिन करते हो ना, तो एक ऑब्जेक्ट रहता है कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट, कौन सा, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट रिमेंबर, बट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है, क्लास रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो उसमें भी सेट कर सकते हो आप और गेट कर सकते हो क्या, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, यूजर नेम बेसिकली, Yes. ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट रहता है, जो आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा ये चीजें, बट जब आप लॉग इन करते हो तो आपका जो यूजर नेम है वो उस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में जाके बैठ जाता है। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब जैसे आपने समझो लॉग इन कर लिया, अब यहाँ पे समझो आप कुछ तो भी कुछ तो भी ये प्रिंट कर रहे हैं, समझो एक कोई तो भी अपना रेस्ट कंट्रोलर है, कोई भी कंट्रोलर है, राइट। कोई मेथड है, समझो वेलकम मेथड या गेट एम्प्लॉय मेथड, कौन सी, गेट एम्प्लॉय मेथड, ऐसी एक मेथड है। आप जैसे ही इसको कॉल करते हो, दिस इज फॉर ये ऑडिटिंग पे कौन जो जो काम कर रहा है अभी उनके लिए, ठीक है, उनके लिए। सो गेट एम्प्लॉय जब आप कॉल करोगे या कोई भी एपीआई जब कॉल करोगे आप, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि ये गेट एम्प्लॉय एपीआई किसने कॉल किया, समझे। एक एप्लीकेशन बनाया मैंने, अब आप 10 लोग उसके, आप 10 लोग आपको वीडियो देखना है, तो आप क्या करते हो समझो, गेट वीडियो ये एपीआई कॉल करते हो, कौन सा, गेट वीडियो Video. हाँ गेट वीडियो एपीआई कॉल करते हो। तो मेरे को देखना है कि ये वीडियो किसने किसने देखा और कितनी बार देखा है, फॉर एग्जाम्पल देखना है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट रहता है, जब लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपका यूजर नेम उसके अंदर चला जाता है, तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट है रेडीमेड, उसके अंदर से एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट नाम का एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, कौन सी, गेट यूजर आईडी, फॉर एग्जाम्पल गेट यूजर आईडी। क्लियर, कौन सी मेथड है, गेट यूजर आईडी गेट यूजर आईडी, ओके। तो मुझे ये रिटर्न क्या करता है, यूजर आईडी किसने लॉगिन किया है इसके अंदर, मतलब ये वीडियो कौन कितनी बार देख रहा है, ठीक है, और कहाँ से देख रहा है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं क्या करूंगा, ये वीडियो का लॉजिक तो रहेगा यहाँ पे वीडियो दिखाने का, ओके, बट मैं तुम्हारा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट यूजर आईडी, ओके लेट्स से स्ट्रिंग यूजर आईडी, यूजर आईडी निकाल लूंगा और उसको टेबल में प्रिंट कर, मतलब मुझे जो यूज करना है मैं टेबल में डालूंगा कि अच्छा ये वाला वीडियो इस यूजर आईडी ने देखा था, गेटिंग। तो इस यूजर आईडी का मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस Yes, sir. ठीक है। अब मैंने यहाँ पे निकाला ये वीडियो, अभी अब ये वीडियो का लॉजिक चल रहा है, समझो ये वीडियो चल रहा है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए चल रहा है। तो मैं नीचे क्या करूंगा, जैसे ही वीडियो खत्म होता है, वीडियो का लॉजिक रामकृष्ण सोमत, ठीक है, जैसे ही वीडियो का लॉजिक खत्म होता है, क्लियर, तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ सिस आउट में, जिनको लॉगर्स पता है उनके लिए लॉगर्स, ठीक है,
या सिस आउट या ऑडिटिंग, जो कुछ भी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि दिस यूजर आईडी, ओके, समझो सिस आउट, व्हाट आई विल राइट हियर कि दिस यूजर आईडी, ओके, दिस यूजर आईडी, और कौन सा यूजर आईडी, ये वाला, प्लस यूजर आईडी, ये जो यूजर आईडी निकाला इसने, दिस यूजर आईडी वॉच, ओके, वॉच दिस एक वीडियो, समझो जो कुछ भी होगा, ठीक है, दिस वीडियो, क्लियर, क्लियर। अब ये क्या हुआ कि ये समझो डाउनलोड कर रहे हो, लेट्स से आप डाउनलोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डाउनलोड तो होता नहीं, बट डाउनलोडिंग का एपीआई। सो जैसे गेट वीडियो पे कॉल किया तो मैं क्या निकाला, कौन डाउनलोड कर रहा है इस वीडियो को, तो मैंने यूजर आईडी बाहर निकाला, ओके। अब डाउनलोडिंग चल रहा है, डाउनलोडिंग में चल लगेगा समझो 1 घंटा, जो कुछ भी है, आधा घंटा, 15 मिनट, और उसके बाद में जब खत्म हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इस यूजर आईडी ने ये वीडियो डाउनलोड किया, ऐसा यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सिसआउट के अंदर। या तो मैं टेबल के अंदर डालूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के अंदर डाल दूंगा कि ये यूजर आईडी ने ये वीडियो इतना टाइम देखा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो जो क्रेडेंशियल शेयर कर रहे हैं मेरे को पता चलता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने शेयर किए होंगे वो फॉरवर्ड पासवर्ड कर दो, अभी अपना रिसेट पासवर्ड कर दो, ओके। इन सी हियर, क्लियर। जो यूट्यूब वगैरह है वो भी ऐसे ही करता है, राइट। आपको जो वीडियो पसंद है, मतलब आप जो वीडियो देखते हो वही आपको कैसे दिखते हैं बार बार, ठीक है। वो क्या होता है कि जब आप YouTube को लॉग इन करते हो और देखना स्टार्ट कर दो तो ये यूजर आईडी इसी कैटेगरी में वीडियोस देख रहा है, ठीक है। या गूगल पे आप जब सर्च करते हो तो अच्छा, इस यूजर आईडी ने, इस जीमेल आईडी ने इस टाइप का सर्च किया था, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है उस केस में, और वही कैटेगरी के वीडियोस आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। यस Yes, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, लेट्स सी, ओके, हो क्या रहा है, अब होगा क्या यहाँ पे, आपने ये कर लिया, ओके। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में आप यूजर आईडी निकाल रहे हो। अब जैसे पहला रिक्वेस्ट आया, पहले समझो यूजर आईडी 1 आया, क्या है, यूजर आईडी 1, ठीक है, यूजर आईडी 1 आया, उसका समझो वो है जॉन, क्या है उसका यूजर आईडी, जॉन, जॉन 1 है, लेट्स से। अब जॉन 1 मैंने यहाँ से निकाला, ओके, जॉन 1 निकाला, उसने वीडियो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तभी दूसरा थ्रेड आया, वो है जॉन 2, कौन है, जॉन 2, John 2. ओके। अब जॉन 2 आया, अब यूजर आईडी क्या था पहले, जॉन 1, ठीक है। जॉन 1 ने वीडियो देखना स्टार्ट किया। अब मैं यहाँ पे जैसे ये प्रिंट करने जाएगा जॉन 1 का नाम, कि जॉन 1 वॉच दिस वीडियो फॉर दिस मच ऑफ टाइम भी डाल रहा हूं मैं यहाँ पे कि कितने टाइम उसने देखा वो वीडियो, फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ कि बेसिकली जैसे यहाँ पे आया, यूजर आईडी था जॉन 1, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, दूसरा थ्रेड आया, ठीक है, लेट्स से उसका स्पीड ज्यादा था डाउनलोडिंग का, इंटरनेट स्पीड, उसने फटाक से डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जॉन 1 की जगह क्या प्रिंट होगा, जॉन 2, क्लियर। और जो दूसरा डाउनलोड कर रहा है जॉन 1, ठीक है, उसका कंप्लीट होने के बाद में यूजर आईडी क्या है यहाँ पे, वो भी जॉन 1 है, सॉरी जॉन 2 ही है, तो 2 बार जॉन 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। लेट मी रिवाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग यूजर आईडी जॉन 1 आया यहाँ से, क्लियर। Yes, sir. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट क्या रिटर्न करता है, किसने लॉगिन किया है वो रिटर्न करता है, ठीक है। कौन इस एपीआई को कॉल कर रहा है, तो उसका मुझे यूजर आईडी मिल जाता है। सो जैसे ही ये कॉल हुआ, मिला यूजर आईडी जॉन 1, ठीक है, वीडियो डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, जॉन 1, ठीक है। One. तभी दूसरा रिक्वेस्ट आया, John तभी 2. दूसरा रिक्वेस्ट आया। अब वो जो दूसरा यूजर, अभी ये तो डाउनलोड कर ही रहा है, इसका तो चल ही रहा है समझो, ठीक है। तभी दूसरा है, अभी उसने किया गेट, उसको क्या मिलेगा, यूजर आईडी इक्वल टू जॉन John 2. 2, तो अभी यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, जॉन 2। अब दोनों थ्रेड यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोनों थ्रेड यहाँ पे आने के बाद में, ठीक है, पहला थ्रेड कंप्लीट हो गया। फिर पहला थ्रेड क्या पहली जो रिक्वेस्ट थी, पहले रिक्वेस्ट का थ्रेड, वो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, यूजर आईडी इज इक्वल टू जॉन 1 कैसे करेगा, क्योंकि यूजर आईडी की वैल्यू क्या है अभी, John 2. John 2 है, John. तो वो अभी जॉन 1 का कंप्लीट हो गया और प्रिंट क्या कर रहा है, जॉन 2। John 2. और जो दूसरा जॉन 2 चल रहा है वो तो जॉन 2 ही करेगा, क्योंकि यूजर आईडी की वैल्यू जॉन 2 है, क्लियर। और दो बार क्या होगा यहाँ पे प्रिंट, जॉन 2, और जॉन 1 का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं बचा, गेटिंग। ये रिपीट Yes. करो हाँ बोलो ऑनलाइन गाइस, नो सर, बाकी बोलो, ये 2 लोग छोड़ के बोलो, वो तो हाई Getting, बोलने sir. वाले। यस सर, एक बार Yes, कीजिए।
एक बार रिपीट करो सी है। सो मैंने ये समझा पहले सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ये चीज क्या है, Yes, sir. Yes, sir. ये समझी? ठीक है, ये इसका काम एक ही, अभी तो आपने सिक्योरिटी लगाई नहीं, जब आप सिक्योरिटी लगाओगे तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट यूजर आईडी जब भी करोगे तो जिसने भी लॉगिन करके वो उस एपीआई को हिट मारा है उसका यूजर नेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी मेरे एप्लीकेशन में हिट करते हो तो आपका यूजर आईडी आईपी एड्रेस सब मिलता है मेरे को। ठीक है, तो जैसे ही आपने हिट करा यहाँ पे, क्लियर, तो मैं यहाँ पे आपका क्या निकाल रहा हूँ, यूजर आईडी निकाला, निकाला। Yes. निकालने के Yes, बाद sir. में अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है, यहाँ पे क्या सीस आउट करना है वीडियो देखने के बाद में कि किसने ये वीडियो देखा करके। ठीक है, अब जैसे ही गेट वीडियो, समझो अभी जॉन 1 जॉन 2 दोनों ने भी लॉग इन किया और जॉन 1 ने गेट वीडियो कॉल कर दिया। ठीक है, गेट वीडियो जैसे ही कॉल कर दिया तो यूजर आईडी मैं यहाँ पे निकालूंगा। यूजर आईडी क्या है अभी इसका, जॉन John 1। 1. ठीक है, John अब यूजर आईडी की वैल्यू, अब वो वीडियो उसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको लग रहा है समझो 2 मिनट, या देखना स्टार्ट कर दिया, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे डाउनलोड। अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट समझो। ओके, अब यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, जॉन John 1. 1. जॉन जॉन 1 है। अब दूसरे ने लॉगिन, जो जिसने लॉगिन किया उसने भी एपीआई कॉल किया गेट वीडियो वाला, तो तब वो यहाँ पे आया। तो अब यूजर आईडी वैल्यू क्या थी, जॉन John 1. 1. 1, बट अभी क्या हो गई, John 2. जॉन 2। अब यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, John अब 2. जो पहला थ्रेड भी डाउनलोड कर रहा है दूसरा थ्रेड भी डाउनलोड कर रहा है, राइट, दूसरा Yes. भी थ्रेड डाउनलोड कर रहा है, अब दोनों थ्रेड डाउनलोड कर रहे हैं। अब दोनों का समझो हो गया, और दोनों भी क्या क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, हाँ, User ID. यूजर आईडी। और यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी क्या प्रिंट करेगा, John 2. क्या होगा, जॉन 2। गेटिंग और नॉट, रामकिशन गेट इन Yes. ऑनलाइन गाइस, Yes, sir. Yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, मतलब होना क्या था, जॉन 1 वॉच और दिस वीडियो और John 2 जॉन 2 वॉच दिस वीडियो, बट हुआ क्या, जॉन 2 John 2 ही प्रिंट हुआ है. ठीक है, हाँ, क्लियर क्लियर। Yes, sir. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तुम इसको Yes, sir. सिंक्रोनाइज बना दो, इसे तुम सिंक्रोनाइज बना दो, राइट। तो पहला थ्रेड सिंक्रोनाइज बना के भी फायदा नहीं है, यूजर आईडी तो वो वैसे ही करने वाला जो लास्ट टाइम किया था। ठीक है, क्योंकि यूजर आईडी तो वो ये कर दिया उसने, कॉन्टेक्स्ट में से निकाल लिया, बट ठीक है, एनीवे नहीं, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। ये क्यों चलेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज अगर आपने कर दिया तो गेट वीडियोस कॉल हुआ और एक थ्रेड एक ही बार अंदर घुस सकता है। तो जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो बाहर वेट करेगा। क्लियर Yes. क्लियर, Yes. ठीक है, Yes, उसको sir. एक्सेस मिलेगा नहीं और ये कॉल होगा ही नहीं, तो सिंक्रोनाइज यहाँ पे काम करने लगेगा। बट वही है कि दूसरा थ्रेड कब तक वेट करेगा, राइट। जब तक उसका लॉक. हाँ, तो वो तो टाइम हो जाएगा, जैसे 1000 अगर यूजर को अगर वीडियो देखना है तो वो तो 1000 मिनट लग जाएंगे। Yes. Clear? So synchronize will not, like, it will impact on the performance. So what we can do, we can go for the thread local. किसके लिए? We can Thread go for local. the thread local. Okay. तो thread local क्या करेगा अभी? It's very simple. Okay. Thread local क्या करेगा? Simple यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे? एक thread local एक class है, which is provided by the Java. Okay. So thread local class का एक object बनाएंगे। ऐसा बना दिया। Thread local th, okay, tl is equal to new thread local. Clear? ये बना दिया। Then next thing is, ये जो यूजर नेम है ना, ये यूजर आईडी, ये कहाँ पे ऐसे ओपन में नहीं रखेंगे उसको, इसे क्या करेंगे, tl डॉट, क्या है उसका, tl डॉट सेट है, आई डोंट रिमेम्बर मेथड नेम, सेट नेम है शायद, ठीक है, सेट या ऐड है, कुछ तो भी ऐसा है, ठीक है, समझ लो। tl डॉट ऐड यूजर आईडी, क्या करें, क्या करा मैंने यहाँ पे, यूजर आईडी। क्लियर? लेट मी, मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड लोकल नाम का और उसके अंदर tl डॉट ऐड यूजर आईडी डाल दिया। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब ये थ्रेड लोकल क्या करता है, थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर करता है। मतलब पहला थ्रेड आया, ठीक है, जॉन 1 का थ्रेड आया, उसका यूजर आईडी था जॉन 1, अब tl डॉट ऐड कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। Yes, sir. अब दूसरा भी आया, ठीक है, उसका कुछ tl डॉट ऐड किया हुआ जॉन 2 आया फॉर एग्जांपल। अब जब यहाँ पे आप जब प्रिंट कर रहे हो ना यूजर आईडी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यूजर आईडी प्रिंट मत करो, tl डॉट गेट करो सिर्फ, ठीक है। जो भी थ्रेड लोकल के अंदर स्टोर किया हुआ है, मतलब यूजर आईडी स्टोर किया, वही यहाँ पे निकलेगा। Yes, ओके, sir. अब यहाँ पे हो क्या रहा है,
यहाँ पे समझो थ्रेड 1 आया तो थ्रेड 1 का ही यूजर आईडी मिलेगा यहाँ पे, थ्रेड 2 आया तो थ्रेड 2 का ही यूजर आईडी मिलेगा यहाँ पे, मतलब इट इज स्टोरिंग द थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यूज। पहला थ्रेड आया उसका था जॉन 1 यूजर आईडी, तो टीएल थ्रेड लोकल के अंदर जॉन 1 ऐड कर दिया। अब जब गेट करोगे ना, जब भी कहीं पे भी पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी गेट करो टीएल डॉट गेट, मतलब थ्रेड 1 अगर टीएल डॉट गेट कॉल करेगा, अब ये थ्रेड 1 है, ठीक है, ये थ्रेड 1 है, अब थ्रेड 1 टीएल डॉट गेट करेगा ना, उसको यूजर आईडी 1 ही मिलेगा, मतलब जॉन 1 ही मिलेगा। क्लियर? Yes, sir. कोई भी कभी भी किधर भी रिज्यूम हो, पॉज हो, टीएल डॉट गेट जो भी थ्रेड कॉल करेगा उस थ्रेड की ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। क्लियर परमेश्वर? गेटिंग और गया, सिर्फ मुंडी मत हिलाओ। यस और नो? स्नेहा, गेटिंग और नॉट? ऑनलाइन गाइज? Yes, sir. Yes, Getting. sir. Yes, sir. Clear. Yes, Sir. sir. क्लियर, राइट? ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, तो उसे डाल दो थ्रेड लोकल के अंदर। Yes. ओके, और क्या करो, उसी ये थ्रेड अभी कहीं मतलब 1000 थ्रेड भी आए समझो, तो क्या होगा, जो भी थ्रेड गेट करेगा उसको उसका यूजर आईडी मिलेगा, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी स्टोर कर दिया गया है इसके अंदर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, सो sir. दिस इज कॉल्ड द लोकल के अंदर थ्रेड लोकल। सो थ्रेड लोकल we can use thread local to avoid the data inconsistency. Okay, we can use thread local to avoid the data inconsistency. Second thing ki it is storing a thread specific values. ओके मतलब इस ये थ्रेड उसको उसकी वैल्यू यूज नहीं करेगा और दूसरा थ्रेड दूसरे की वैल्यू यूज नहीं करेगा, सब अपनी अपनी वैल्यूज यूज करेंगे वहां पे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. ठीक है, तो चलो अभी ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं अपन। ओके, Yes. हाँ, प्रिंटर में। ठीक है, तो लेट्स सी। हाँ, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं थ्रेड लोकल। सो व्हाट वी डिड हियर, हमने स्टार्ट कर दिया एंड देन यहाँ पे पहला थ्रेड आया। ओके, ओके लेट मी चेक। नेम आपने यहाँ पे भेजा। ओके, देन नेम भेजने के बाद में ये नेम सेट किया आपने। अब ये सेट कौन कर रहा है, ये थ्रेड कर रहा है, राइट? तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ थ्रेड लोकल, मतलब यहाँ पे मल्टीपल जगह पे आप उसका यूज कर सकते हो, और लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, थ्रेड Local. लोकल। ओके, Local. चलो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ये समझो, वैल्यू स्ट्रिंग ये है, टीएल इज इक्वल टू न्यू New थ्रेड thread लोकल। local. ठीक है, देन इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, वो टीएल डॉट, हाँ ऐड कौन सा है उसमें, ऐड या सेट है, Set. सेट किया मैंने, स्टॉक नेम सेट कर दिया। Yes. क्लियर कर दिया थ्रेड लोकल के अंदर। Yes. अब यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं। कर दिया। अब नाउ लेट्स रन। Yes, sir. क्या होता है, तो अच्छा गेट, हाँ तो यहाँ पे प्रिंट करते टाइम क्या करना पड़ेगा हमें, Get करना पड़ेगा. Get. TL से get करना पड़ेगा. TL dot get. नहीं नहीं नहीं, ये टीएल भी हमें इसके अंदर भेजना पड़ेगा। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं चलेगा, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग कि ये टीएल तो टीएल ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ पे कैसे गेट करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन सिंपली रिमूव दिस, और जैसे ही ये कॉल होगा तो टीएल टीएल कौन से मेथड के अंदर कर सकते हैं अपन, ये इसे इसे कौन से जगह पे कर print. सकते हैं, सेट नेम के अंदर किया तो चलेगा भाई, है ना? सेटर के अंदर ही करना पड़ेगा उसे, नेम। ठीक है, सेट नेम, लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट, बताता हूं मैं, ठीक है, डोंट वरी। Get करना पड़ेगा नीचे. Get करना हाँ नीचे पड़ेगा. कट करना पड़ेगा, ठीक है, TL dot. टीएल डॉट डॉट TL गेट। dot get. ओके लेट्स रन। Not working. टाटा MT1 RL MT2 वर्क तो कर रहा है, टाटा MT1 है और RL MT2 है, ठीक है। लेट्स रन अगेन मल्टीपल टाइम, RIL MT2 टाटा MT1, लेट्स रन अगेन, टाटा MT1 RIL MT2 कर रहा है। Yes, work कर रहा है. क्लियर क्लियर, Yes. ओके लेट मी Yes, sir. रिवाइज, ठीक है, जिनको नहीं समझा उनके लिए, ठीक है। सी हमने क्या किया अभी, कंट्रोल जेड, ओके ठीक है, फिर से मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, लेट्स रिवाइज वंस। ओके, अब क्या हुआ, हमने थ्रेड 1 स्टार्ट किया, थ्रेड 1 में क्या भेजा, टाटा भेजा, ठीक है। फिर ये कॉल हुआ टाटा ने, जब भी ये थ्रेड 1 स्टार्ट होगा
empty1 स्टार्ट होगा, देन व्हाट विल हैपन, ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। ओके, रन मेथड जो थ्रेड 1 है, empty1 है, उसने पहले सबसे पहले ये मेथड कॉल कर दी और Yes, sir. सेट नेम कॉल कर दिया, उसको नेम भेज दिया। क्या नेम भेजेगा वो, वही टाटा वाला नेम भेजेगा, उसने भेज दिया। यहाँ पे वो टाटा वाला नेम आ गया, ठीक है। अब ये Yes. थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो रहा है या empty1 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब वो नेम असाइन कर रहा है ना, तो तब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम टाइम पे वो जो नेम है, हाँ मतलब इंस्टेड ऑफ assigning that name here, we can directly thread local string tl is equal to new thread local, Trade local. ओके। और यहाँ पे उसके अंदर tl डॉट सेट वो जो नेम भेजा था थ्रेड 1 ने, टाटा वाला, वो टाटा वाला किसका नेम, किसने भेजा, ये Yes, sir. empty1 ने टाटा भेजा था, तो empty1 का जो है वो टाटा यहाँ पे स्टोर कर दिया। क्लियर Yes, sir. क्लियर। तो Yes, अभी तो sir. वैसे इसकी जरूरत है भी नहीं, बट ठीक है, कर दिया यहाँ पे। नाउ ये empty1 करने के बाद में Sir. अभी ये थ्रेड लोकल के अंदर ये empty1 स्टोर, सॉरी empty1 का जो नेम था टाटा, वो स्टोर हो गया। और मैं जब भी मैं यहाँ पे tl डॉट गेट, सॉरी tl, क्या प्रॉब्लम है इसको, tl डॉट, अच्छा ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी ग्लोबल, ओके यहाँ पे। ओके, देन tl डॉट गेट करूंगा जब भी मैं, तो क्या होगा Hello. कि थ्रेड 1 अगर ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब भी tl डॉट गेट करोगे तो थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यू ही मिलेगी। थ्रेड 1 क्या लेके आया था, टाटा लेके आया था, Tata लेके तो आए. टाटा ही मिलेगा, पॉज हो, रिज्यूम हो, कुछ भी हो। जब भी tl डॉट गेट कॉल होगा, तब थ्रेड 1 की, अगर ये tl डॉट गेट थ्रेड 1 कॉल कर रहा है तो उसको टाटा ही मिलेगा, अगर tl डॉट गेट थ्रेड 2 कॉल कर रहा है तो उसे RIL ही मिलेगा। क्लियर। इधर डेटा कंसिस्टेंसी अवॉइड होगी ना सर. हाँ मतलब इट इज यूजिंग थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब पहला थ्रेड आया, पहला थ्रेड का टाटा था, तो वो टाटा ही प्रिंट होगा, उसको वो थ्रेड कभी भी एग्जीक्यूट हो, आधे घंटे बाद में वो कभी भी हो, उसको वही टाटा वाली ही वैल्यू मिलेगी। क्लियर। यस सर क्लियर. सर वो दिस डॉट नेम इक्वल टू टीएल जो- डॉट गेट ही होगा ना, या नेम ही सेट करेंगे हम? नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है ही नहीं। गेटिंग, समझा अभी? एक मिनट, सर उसमें स्टोर करके लिखेगा क्या फिर T1 में, जैसे ही पॉज हो गया T1 हम क्या पे? कर रहे हैं, जो टीएल के अंदर ना पहला थ्रेड आ गया, टीएल ने क्या किया, अपनी जो वैल्यू है टीएल के अंदर स्टोर कर दी। थ्रेड 2 आ गया, थ्रेड 2 ने क्या किया, टीएल के अंदर अपनी वाली वैल्यू स्टोर कर दी। थ्रेड 3 आ गया, उसने अपनी वाली वैल्यू टीएल में स्टोर कर दी। अब जब भी ओके सबसे पहले जो थ्रेड्स आए ना इसके अंदर, उन्होंने अपनी अपनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर दी पहली बार। करने के बाद में अगर उनको जब भी वो वैल्यू लग रही है कभी भी, तो वो क्या कर रहे हैं, हाँ जब भी उनको वैल्यू वो लग गेट रही है कर रहा है। then वो सिर्फ उसमें से गेट कर रहे हैं। तो थ्रेड 1 ने गेट कर दी, थ्रेड 1 को थ्रेड 1 की मिल जाएगी, थ्रेड 2 को थ्रेड 2 की मिल जाएगी, थ्रेड 3 को थ्रेड 3 की मिल जाएगी। क्लियर। या तो आप ये यस भी सर। कर सकते हो, या तो आप ये भी कर सकते हो, स्ट्रिंग मतलब टीएल का यूज करेंगे, ओके नहीं ठीक है, दैट इज फाइन, ओके क्लियर, यस सर। समझाया गया, यस सर. ठीक है ना। सर सो ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं, सिर्फ थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यू और सेम, आप ना इससे ज्यादा ना ये एग्जांपल याद करो, ये वाला, ठीक है ओके, यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन से चलता है। तो वेब पहला थ्रेड आया, मतलब पहला रिक्वेस्ट आया, देन पहला रिक्वेस्ट आने के बाद में हमने क्या किया, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट से उसका आईडी निकाला। जब आईडी निकाला तो यूजर आईडी की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, हाँ ओके ठीक है। तो यूजर आईडी क्या है, अभी नल है, क्या है, नल। पहली रिक्वेस्ट आ गई, समझो मैंने यहाँ से ये भी निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके अभी के लिए, या तो एक काम करता हूँ, अरे पूरा का पूरा चला गया, ठीक है ओके। सो सिंपली यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको। इसमें क्या, पहला रिक्वेस्ट आ गया, यूजर आईडी क्या है, अभी नल है। जैसा ही पहला रिक्वेस्ट आएगा, देन व्हाट विल हैपन, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में से हमने यूजर आईडी निकाला,
निकालने के बाद में यूजर आईडी है समझो John1, null. John1 है, ठीक है, अभी John1 हो गया ना, राइट, John1 हो गया। Yes. अब ये जो यूजर आईडी है ये, इसकी वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई, John 1. इसको भी निकाल John दो, 1. ठीक है। यूजर आईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, John1, राइट। अब कुछ वीडियो वगैरह में कुछ लॉजिक परफॉर्म किया और यहाँ पे क्या किया फिर, ये टीएल नहीं, समझो यहाँ पे यूजर आईडी प्रिंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अभी टीएल यहाँ पे लिखा हुआ है बट ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, John1। बट हो क्या गया कि पहला रिक्वेस्ट आया, किसी का नॉइज बंद करो, ठीक है, उसने ये गेट वीडियो कॉल किया, यूजर आईडी था उसका John1, अब यूजर आईडी की वैल्यू क्या होगी, John1। अब वो वीडियो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म, तभी दूसरा आ गया, दूसरा आने के बाद में क्या हुआ, वो भी गया और उसने यूजर आईडी इज इक्वल टू क्या कर दिया, John2। अब इस यूजर आईडी की वैल्यू क्या है, John2। अब ये दोनों भी थ्रेड क्या कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ओके, और वीडियो डाउनलोड होने के बाद में दोनों थ्रेड ने ये प्रिंट किया, और दोनों थ्रेड प्रिंट क्या करेंगे, John2 प्रिंट करेंगे। एक तो John1 होना चाहिए था, बट दोनों क्या प्रिंट करेंगे, John2। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, हम सिंपली, You can use the thread local. हाँ हम क्या करेंगे, थ्रेड लोकल क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहली रिक्वेस्ट आई, पहली जैसे रिक्वेस्ट आई तो व्हाट वी विल डू, पहली रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है, जैसे आने के बाद में गेट वीडियोस कॉल किया, एक मिनट यहाँ पे ये, हाँ पहली रिक्वेस्ट आ गई, पहले रिक्वेस्ट आने के बाद में व्हाट विल हैपन, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में से उसने यूजर आईडी निकाला, अब वो क्या था, John1 था, और उसने वो John1 को थ्रेड लोकल के अंदर स्टोर कर दिया, क्लियर, tl.add, अब थ्रेड लोकल के अंदर चला गया, दैट्स इट। अब वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने अपना यूजर आईडी थ्रेड लोकल के अंदर रख दिया। अब दूसरा रिक्वेस्ट आया, वो था John2, उसने उसका यूजर आईडी क्या निकला, John2, John2. तो उसने वो John2 कहाँ पे स्टोर कर दिया, हाँ Add. थ्रेड लोकल के अंदर, दोनों ने भी अपना अपना यूजर आईडी थ्रेड लोकल के अंदर स्टोर कर दिया, क्लियर, Yes. ठीक है। अब दोनों वीडियो परफॉर्म कर रहे हैं, हम जो वहां पे डाउनलोड कर रहे हैं जो कुछ भी है। अब सब कुछ होने के बाद में जब वो प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो पहला थ्रेड यहाँ पे पहुंचा, अब वो क्या बोलेगा, थ्रेड लोकल को मैंने जो तुम्हें यूजर नेम दिया था, यूजर आईडी दिया था, वो दो मुझे, tl.get, तो उसे क्या Yes, मिलेगा, उसने जो स्टोर किया था John1 वही मिल जाएगा। दूसरा आ गया, दूसरा बोलेगा अच्छा मेरा मेरा मुझे दे दो जो है, तो tl.get उसे उसका मिल जाएगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes. Yes, sir. ठीक है, That's it. पर थ्रेड लोकल तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे कैसे दो दो मतलब एक साथ रख सकते हैं वैल्यूज, यूजर वन नहीं और वो मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है, वो क्या करेगा, थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यूज मेंटेन करेगा उसके अंदर, गेटिंग Yes, गेटिंग माय पॉइंट। थ्रेड स्पेसिफिक मतलब क्या, ये थ्रेड 1 है कि थ्रेड 1 के अंदर मतलब डेफिनेटली इंटरनली उसके कुछ लॉजिक होगा कि हाँ थ्रेड 1 ने एक्सेस किया तो थ्रेड 1 का वैल्यू ये है, की1 की, ओके, थ्रेड 1 और थ्रेड 1 का वैल्यू ये है। अब जब वो कॉल कर रहा है t1.get तो इंटरनल चेक कर रहा होगा ये t1.get थ्रेड नेम, मतलब t1.get किसने कॉल की, उसका नेम दिखता होगा, उसका नेम आ गया समझो थ्रेड 1, तो थ्रेड 1 की वैल्यू क्या है, John1 वो देता होगा, गेटिंग Yes, sir. Yes. नताशा, है ना, इंटरनली इस तरीके से वो थ्रेड स्पेसिफिक वैल्यू मेंटेन कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यू, ऐसा समझ लो अभी आप, ठीक है, की एंड वैल्यू होगी, दूसरा क्या होगा, राइट, क्लियर, मैप लाइक अ मैप, कि थ्रेड 1 आया तो थ्रेड 1 का कि, वैसे तो आप खुद का भी थ्रेड लोकल क्रिएट कर सकते हो, आपको क्या करना है, सिंपली मैप क्रिएट करो, पहला आया थ्रेड 1 आया, MT1 आया, उसका नाम देखो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है थ्रेड 1 और उसने यूजर आईडी क्या दिया हुआ है, उसका यूजर आईडी क्या है, समझो John1, वो मैप के अंदर डाल दिया, ठीक है। जब गेट करोगे तो गेट करते टाइम चेक करो इसका नाम क्या है, उसका नाम है थ्रेड 1, तो थ्रेड 1 की वैल्यू क्या है, उसको दे दो John1, John 1. क्लियर, क्लियर नताशा, Yes. Yes, sir. Clear. Yes. ठीक है, दैट्स इट, सो इट इज मेंटेनिंग द स्पेसिफिक वैल्यू, दैट्स इट, मतलब खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, एक बार आपको समझ में आएगा ना ऑब्जेक्ट मेथड, ये आपको कुछ टाइम लगता नहीं, अगर खुद का थ्रेड लोकल बना तो बना दोगे आप, क्लियर, नॉट एन इशू, ठीक है। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट की दो उसको, की दो, राइट, समझो खुद का अगर थ्रेड लोकल बनाना है तो क्या करोगे आप, कि
उसका नाम, थ्रेड का नाम क्या रहेगा, उसकी की, और उसकी वैल्यू जो है यूजर आईडी वो रख दिया। दूसरा थ्रेड आया, उसका थ्रेड का जो नाम है वो की, वैल्यू जो समझो John2। अब जब गेट करोगे तो गेट कर रहे टाइम चेक करोगे कि इस थ्रेड का नाम क्या है, ये कौन सा थ्रेड है ये गेट कर रहा है, उसका नाम है thread1, तो thread1 की वैल्यू क्या है, John1, दे दो उसको रिटर्न। सो इन दैट वे यू कैन क्रिएट योर ओन थ्रेड लोकल। क्लियर? ठीक है, सर ठीक है। सो पहले क्या था कि ये डेफिनेटली 15-20 साल पहले लोग खुद के थ्रेड लोकल क्रिएट करते होंगे, है ना, बट लोगों को नहीं आता तो उसने खुद जावा ने थ्रेड लोकल दे दिया उनको कि भाई ये यूज करो। ओके, दैट इज थिंग, चलेगा। सो आई थिंक वी आर गुड हियर, राइट? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? हाँ, नो नो सर। प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे पहला वे सिंक्रोनाइज करो, सिंक्रोनाइज करने से आप लोग को प्रॉब्लम पता है, राइट? फिर थ्रेड लोकल यूज करो, मतलब कितने भी थ्रेड एक्सेस करेंगे बट अपना अपना वैल्यू जाके वो एग्जीक्यूट करेंगे वहां पे। हाँ, यहाँ पे Yes, sir. इशू क्या है, यहाँ पे मेमोरी थोड़ा ज्यादा ले सकता है थ्रेड लोकल है तो, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं, बट थ्रेड लोकल इज गुड इन दैट केस। क्लियर? ठीक है। सो basically, sir, thread local avoid the data inconsistency. हाँ, यस, करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड, अभी जब आपको पूछा जाएगा सिंक्रोनाइज, ओके, देन यू हैव टू टेल देम कि सिंक्रोनाइज कीवर्ड वी कैन यूज एट द मेथड लेवल, एट द ब्लॉक लेवल। Okay, so when we make any method synchronize, okay, then only one thread can access at a time, so it avoids the data inconsistency and it provides a thread safety, जो हुआ भी thread safety। दूसरी बात है रेस कंडीशन, रेस कंडीशन बोलते हैं, क्वेश्चन आया था किसी को, शायद कल्याणी को पूछा था रेस कंडीशन। ओके, अब रेस कंडीशन मतलब कौन सी है, यही रेस कंडीशन है जो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है ना, RIL टाटा RIL, ठीक है, MT1 ने RIL Yes, sir. पिन किया, MT2 ने, दिस इज कॉल्ड द रेस कंडीशन। क्लियर? किसको पूछा था ये क्वेश्चन? Yes, sir. और किसी को पूछा था क्या? आई गेस कल्याणी को ही पूछा था, अब शी इज नॉट हियर। रवीना को पूछा था सर। रवीना को पूछा था क्या? ओके, रवीना भी यहाँ पे है नहीं, अब नेक्स्ट इंटरव्यू में उनको पूछेंगे तो उनको नहीं आएगा। क्लियर? इवन जो मैंने लॉगर्स पढ़ा है, जिनके इंटरव्यू उनको लॉगर ही पूछा और वो क्लास में एब्सेंट है, और उस दिन की रिकॉर्डिंग थी नहीं, गया लॉगर, ठीक है, गया इंटरव्यू गया तुम्हारा। सो जो बैच 6 के स्टूडेंट है ना, वो दे आर टेकिंग वेरी लाइटली, वो क्लास में रहते नहीं, उनको वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? अर्चना है सिर्फ, वैभव है बैच 6 से, शिवानी इज हियर, 3 लोग हैं, बाकी 4 लोग पता नहीं है, 4-5 जो है, वैसे 20 का काउंट है वहां पे। ओके, और उनका डेफिनेटली कि मैं स्टूडेंट्स को यही बोल रहा हूँ कि डोंट लर्न फॉर ओनली जॉब, वैसे जॉब मिलने वाला है नहीं, उसमें एक्सपर्टीज लो, तुम्हें काम आएगा तो जॉब देने वाले, बहुत लोगों को काम करने वाले लोग चाहिए, जॉब लेने वाले नहीं चाहिए उनको कि मेरे को आता है तो मेरे को ले लो, है ना, वो पागल नहीं है। आपका मैं बोल रहा हूँ कि आपका समझो 10-15 लाख का घर बनाना है, तो आप अगर कोई फ्री में भी काम करने के लिए आप दोगे क्या उसे? आप अच्छे इंजीनियर को ही दोगे ना। अगर आपके आपके पास में पैसे है बहुत सारे 1 करोड़, तो आप 10,000 वाले को काम दोगे क्या? आप 1 करोड़ वाले को ही दोगे काम, क्योंकि वो 1 करोड़ की चीज है। तो वैसे जो एप्लीकेशन बनाते हैं मार्केट में, वो लाखों करोड़ों का रहता है, वो फ्री वाले को नहीं देंगे जिसको कुछ आता नहीं हो। और ये भी बात बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो कि आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, तो डोंट, या तो मेरे को सिर्फ जॉब चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ सर, जितना बोल रहे हो उतना ही कर रहा हूँ, वो अगर हिसाब से यहाँ पे बैठ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, इंटरव्यू निकल भी गया, अंदर जाके प्रॉब्लम होगा, बहुत गंदा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कि आप ना कि मतलब हुआ है एक स्टूडेंट के साथ में, ऐसा हुआ है कि उसको लगा मेरा इंटरव्यू हो गया मैं जा रहा हूँ, इवन ऑफर मिलने के बाद में उसने बताया भी नहीं। ठीक है, ऑफर मिलने के बाद में बताया भी नहीं उस कैंडिडेट ने, 2 महीने बाद में जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसको, तब उसने बताया उस कैंडिडेट ने मेरे को। तो ये इंटरव्यू क्रैक हो गया मेरा, बस हो गया, मेरे को जरूरत नहीं है, तो वो मेरा इंटेंशन है ही नहीं। मैं अगर आपको 10 दिन रट्टा मरवाऊं, रोज वही रट्टा ही मरवाऊं 20-25 क्वेश्चन का, तो इंटरव्यू निकल जाएगा। ओके, ये सिखाने से अच्छा है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे बैठो तो एक्सपर्टीज लेने के लिए बैठो। एक्सपर्टीज मतलब थ्योरी में एक्सपर्टीज नहीं कि मेरे को वो इम्प्लीमेंटेशन आने चाहिए कोडिंग। ओके, तब जाके आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि डेफिनेटली 3 साल और 3 महीने इज डिफरेंट, राइट? 3 महीने के अंदर पढ़ना और 3 साल की चीजें पढ़ना डिफरेंट, बट थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगा जो कि आप कवर कर लोगे, क्योंकि आपको एडवांस में सब कुछ थ्योरी पता है। ओके, आपको अच्छा खासा एवरेज कोडिंग भी पता है, यू कैन एबल टू मैनेज। बट दोज पीपल आर थिंकिंग कि हाँ रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, उनसे जो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, प्रेजेंट है यहाँ पे अभी 7 बजे, किसको क्या प्रॉब्लम है?
राइट, 7 बजे किसको कुछ काम नहीं रहता, बट फिर भी जो लोग ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, उनका क्या है कि रिकॉर्डिंग से देख ले, मतलब उसका इंटरेस्ट है नहीं, उनका इंटरेस्ट उसमें है नहीं। अगर इंटरेस्ट है नहीं तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। क्लियर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और आप फ्रेशर करके भी नहीं लग सकते, क्योंकि आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैसे के लिए जॉब करेंगे अपन, नॉट एन इशू, ओके, पैसे के लिए सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ बिजनेस के लिए, आप भी पढ़ रहे हो जॉब के लिए, बट द थिंग इज कि जॉब लेने के लिए एक्सपर्टीज लगेगी, क्योंकि सामने वाला एक्सपर्टीज मांग रहा है, सामने वाला तुम्हारा सर्टिफिकेट्स नहीं मांग रहा है। क्लियर। और जो एब्सेंट रह रहे, अगर वो प्रेजेंट है वो फिर भी एब्सेंट रह रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैच 6 है ना, यहाँ पे सिर्फ 7 और 80% है अभी। देखने तो मेरे को कितना काउंट है अभी। अर्चना इज हियर, देन गणेश इज हियर, वैभव इज हियर, ठीक है, शिवानी इज हियर, 4-5 लोग हैं मैक्सिमम, 4 लोग हैं यहाँ पे। ओके, और ऐसा नहीं उनको इंटरव्यू भर भर के आ रहे हैं, जो एब्सेंट है ना उनको भी इंटरव्यू भर भर के आ रहे हैं पूरा। वो पहला राउंड उनको लग रहा है पहला राउंड क्रैक हो गया, मतलब पहला वही क्वेश्चन पूछ रहे, ओवरलोडिंग। अरे बट दूसरे में पूछेंगे, तीसरे में पूछेंगे, 3-3 राउंड देने पड़ते हैं, एक राउंड नहीं देना पड़ता है, राइट। अपने पास में सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर हमें 3 राउंड क्रैक करने हैं। सो डोंट थिंक अबाउट द फर्स्ट राउंड ओनली, ओके। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये एडवांस चीज है, ठीक है। ये वहां पे सिंक्रोनाइज आपने बोल दिया कि आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट दी मल्टी रेटिंग, बोल दो ना, मेहनत करो थोड़ा सा, बोल दो मुझे आता है मल्टी रेटिंग अच्छे से। वो पूछेगा आपको मल्टी रेटिंग पे 2-4 क्वेश्चन, सिंक्रोनाइज पे तो पूछेगा पक्का, दैट इज फाइन। आप उसको बोल दो सिंक्रोनाइज में ये प्रॉब्लम है, देन ही विल आस्क यू कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑन दैट। तो थ्रेड लोकल बताओ, राइट, कॉलेबल फ्यूचर बताओ। क्लियर। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि बैच 7 और 8 को, बैच 7 में से बहुत सारे एब्सेंट है, ठीक है। सो ये अपना जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, और जो जो स्कैम होते हैं मार्केट में, मैं तो बोल रहा हूँ ये स्कैम करने लायक ही स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि वो उनको मैं दे रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की जॉब है सामने तुम्हारे, सब इंटरव्यू देना है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इतना इतना कर लो, स्टिल दे आर एब्सेंट, क्योंकि कोई लेट उठ रहा है। क्यों लेट, मतलब आपका इंटरेस्ट है नहीं इसमें, तो आपको ये इंटरव्यू भी और कंपनी में आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप लग भी गए तो टेम्पररी लगोगे, 1 साल में फायर कर दिया जाओगे उस केस में, ठीक है। आप टिकोगे नहीं, आप स्विच करते रहोगे लाइफ टाइम। कुछ कुछ लोग ना हर 2 साल बाद में स्विच करते हैं, हर साल पर स्विच करते हैं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाते उस कंपनी के अंदर। इंटरव्यू तो आ जाता है रट्टा मारवा के, ठीक है, पर टिक नहीं पाते, ठीक है। उनका सैलरी बढ़ता है बट फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है, मतलब आंखों के नीचे पूरा काला आ जाएगा सब कुछ, है ना, सब सब वो चीजें हो जाए, मतलब बीपी शुगर सब बढ़ेगा उनका। और छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि रिलेटिव्स को बता दिया है कि 10 लाख का पैकेज है, सबको बता दिया है, और छोड़ेंगे तो बोलेंगे तब तो था, अब गए जॉब। तो उस हिसाब से अगर आओगे तो डोंट डू दैट, ओके। मेरे पास में कुछ ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, कि वो बिल्कुल ऐसा बोल रहे कि सर अभी हम सुसाइड, मतलब मेरे स्टूडेंट थे नहीं, वो थे दूसरे के स्टूडेंट, लग गए थे गलती से लग गए थे। अंदर जाने बाद में वो डायरेक्ट बोलते कि सर अभी तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ, क्योंकि पूरा डंका, मतलब ऐसे ही बोल रहा होगा, सॉरी वो लेवल आ गया। सो मैंने उसको बाहर निकाला वहां से, ठीक है, उसको दूसरा जॉब भी लगा दिया। बाद में उस बच्चे बोल रहे कि सर ने तो क्या 1.5-2 महीने मेरे क्लास में रहा, वो 2 महीना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उसको जॉब मिल गया दूसरा। फिर स्टूडेंट बोल रहे कि यार मेरे को तो 15 दिन ही पढ़ाया, और फिर भी मेरे से पूरी फील ही, अब तू सुसाइड करने जाने वाला था, तेरे को निकाला मैंने उसमें से, है ना, राइट। तो ये भी एटीट्यूड है, बट उसको छोड़ो, अपन उस पर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि जिसको जिसको सच में इसमें ये करना है, क्योंकि इट्स इंजीनियरिंग, ये कुछ लेबर का जॉब है नहीं, Yes, sir. यस यस राइट। पैसा बहुत है इसमें, यस आ गया तो बहुत मजा है, अगर आ गया उसमें एक्सपर्टीज तो बहुत मजा है, मतलब आप बिल्कुल राजा के रहोगे, राजा की तरह रहोगे, ठीक है। अंदर 2 घंटे के अंदर पूरा काम खत्म, ठीक है, और दिन भर सो जाओ, वर्क फ्रॉम है तो सो जाओ, यस लोग यस नींद लेते घर पे, Yes, sir. ठीक है। और Yes, मैं sir. यहाँ पे मैं उसी टाइम में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मेरे को टाइम मिलता है, यस ठीक है। सो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग मी सर मैनेज कैसे करते हो, मैनेज वही करता हूँ कि वहाँ पे 8 घंटे काम 2 घंटे में कर दूंगा, ठीक है, यस और बाकी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ। 2 घंटे में होता नहीं, वैसे कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, यस कॉल्स वगैरह रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट दैट इज द थिंग। नॉन आईटी में जाओगे तो पूरा 9-10 घंटे काम करना, कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है लैपटॉप के सामने, Yes, sir. ठीक है। काम कम रहे, काम ज्यादा दिमाग का नहीं रहेगा, बट कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा, ठीक है, 10 घंटे। Yes, ना sir. कोई Yes, sir. बिजनेस कर पाओगे आप दूसरा, ना कोई क्लास भी कर पाओगे, ठीक है, क्लास भी नहीं कर पाओगे। जो नॉन आईटी वाले तो जॉब छोड़ रहे कि सर अब क्लास, ये जॉब से होता नहीं तो मैं क्लास करता हूँ डेली। 3-4 लोग हैं अपने यहाँ पे, 4-5 लोग हैं ऐसे, क्लियर। और अगर आईटी में रहोगे 2 घंटे में काम खत्म करो, डेवॉप्स भी पढ़ सकते हो पार्ट टाइम दूसरे, क्योंकि आपका 2 घंटे में काम निकल रहा है। और जिसको नहीं आएगा ना, वो तो 24 घंटे बैठा रहेगा फिर आईटी में भी, ठीक है।
तो Yes, आप sir. भी बैठोगे, आप भी 8 घंटे बैठोगे स्टार्टिंग में, बट स्टार्टिंग में 8 घंटे बैठोगे, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे। क्लियर। और Yes, जिसको sir. जो Yes. सिर्फ इसके लिए पढ़ रहा है, किसके लिए, सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा है, जॉब लेने के लिए, वो 24 घंटा बैठेगा फिर वहां पे। राइट, वो 24 घंटा पढ़ेगा, वो नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि वो कल उसको पूछेंगे क्या हुआ। राइट, 2 दिन का काम अब तो हुआ ही नहीं, वो पूछेंगे ना क्या हुआ भाई। ठीक है, 4 दिन लोगे। और मैंने एक देखा था, मेरे पास में केस आया था, कोरोना टाइम पे केस आया था। एक रूरल एरिया की लड़की थी। उसने की ये के बाय जावा एक क्लास आपको पता होगा, वहां से उसने टेस्टिंग का क्लास किया था। Yes, sir. ठीक है, उसकी लैंग्वेज मतलब उसको ठीक से मराठी भी बोलना नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत नॉन प्रोफेशनल, पूरा एकदम गांव का टाइप। ठीक है, उसको मिला 9 लाख का पैकेज। उस टाइम पे तो सबको पैकेज मिल रहे थे। अब मिला पैकेज, और उसका जो रिलेटिव था, उसका जो मेरा दोस्त था, उसको बोला यार उसको जो हेल्प कर, उसको बहुत, उसका ना बीपी शुगर सब हाई है बोले, वो पागल जैसा कर रही है पूरी। तो उसमें बात करी, एकदम से रोने पे थी कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब पैकेज कितने का? 9 लाख का। मैंने अरे बाप रे, 9 लाख का पैकेज। और मैंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या? मैनुअल टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग इज वेरी इजी। तो सर ऐसा हो रहा है कि मैं जब वहां पे कॉल ले रही हूँ ना, मतलब मैं कॉल में जो कॉल होते हैं, डेली कॉल रहता है ना उनका, डेली कॉल में लड़की बैठ भी नहीं पा रही। ये क्या करे, छुट्टी पे छुट्टी डाल रही है। सर 15 दिन की छुट्टी डाल दी, 20 दिन की छुट्टी डाल दी, और ये कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रही बिकॉज ही इज नॉट एबल टू टॉक। ठीक है, Yes, sir. मराठी में भी वो, हिंदी में भी टॉक बात नहीं कर, मतलब हिंदी तो आता ही नहीं था ढंग से, इंग्लिश तो दूर की बात है। और सर वो जो है ना के बाजा वाले, वो फोन भी नहीं उठाते, और 70,000 फी लिया, फोन भी नहीं उठा रहे। सर अभी क्या करूं मैं, ये करूं। मैंने बोला फिर से पढ़ो और फिर से जॉब लो अच्छे से, ऐसे तो नहीं चलेगा विदाउट, तुम लग गई विदाउट नॉलेज, एंड देन यू आर ट्राइंग टू की सर उसको, एक जेनरिक टॉक होता है ना 4 लोगों के बीच में, कि हम ऐसा करेंगे, ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, ऑटोमेशन पे गई थी शायद। तो सर उन्होंने मेरे को दे दिया ऑटोमेशन करने के लिए, बोल रहा मैनेजर तो बोल रहा है ये 1 दिन का काम है। ठीक है, तो मैनेजर ने बोला 1 दिन का काम है, और इसका 15 दिन, उसको समझ ही नहीं आया कि बात कैसे करूं मैं, सामने वाले को अप्रोच कैसे करूं, क्योंकि जब आपको काम मिलता है तो आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। Yes, ठीक है, sir. Yes, स्टार्टिंग right. में स्टार्टिंग में तो लेनी पड़ती है। तो वो हेल्प, मतलब बात करने का तरीका भी इनको पता नहीं है कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है जय, मेरे को ये था कि मेरे को इसके बात पता है, सो प्लीज कैन यू प्लीज हेल्प मी और गिव मी सम केटी। तो वो जब बैठेगा तो उसके साथ में अच्छे से वो चीजें समझ लेना कि अच्छा क्या क्या है इसके अंदर। अब इनको ये चीज पता ही नहीं। ठीक है, और 9 लाख का Yes. गिरा के बैठ गए, है ना, वहां पे, और गया सब, जॉब तो उसने खुद ही छोड़ दिया था बेसिकली। बट वही है, देर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्टीज लो और एंजॉय करो वहां पे, फुल एंजॉय होगा। 4-5 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, देन Yes. यू विल बी सेट। Yes, sir. Yes. क्लियर। और पहली कंपनी में दिक्कत, दूसरी कंपनी में तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, और आप उस लायक हो। अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कैपेबल। ठीक है, बैच 8 का मुझे पता नहीं है, पर आपको करना है एनीवे एनी हाउ। और पैकेज भर भर के है। जैसे एक बार आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ओरिजिनल, जैसे वो कल्याणी है, अगर उसको देखो तो रोज इंटरव्यू शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, डेली 2-2 3-3 इंटरव्यू। ठीक है, और एक Yes. साथ में 7-8 ऑफर आ जाएंगे, 7 से 8 ऑफर आ जाएंगे, बैक टू बैक आ जाएंगे। अभी तो नोटिस पीरियड उसका 3 महीने का है। राइट, बैक टू बैक Yes. 7-8, मतलब आप जिसके पीछे भाग रहे थे, जॉब चाहिए जॉब चाहिए, कोई दे नहीं रहा है, भीख मांग रहे हो, बट जब आ जाएगा ना, तब 8-8 लोग पीछे लगेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे आ जा। ठीक है, तेरे Yes, को sir. बढ़ा के Yes, देता हूँ। yes, sir. ठीक है, हाथ धो के, बिकॉज इट्स अ स्किल, और ये स्किल का ही डिमांड है। ठीक है, आप डिमांड कर रहे हो जॉब की, और वो जो जॉब देने वाला है वो डिमांड कर रहा है स्किल्स की। क्लियर। या तो कोई ब्लाइंडली बोल देगा मैं जॉब दे रहा हूँ, है ना, परमेश्वर को पता है। ठीक है कि मैं जॉब दे रहा हूँ, आग बंद करके भाई ने 20,000 रुपए भर दिए। ठीक है, मतलब तुम नहीं, वैसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, 20,000 मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारा केस नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का केस है, तुम्हारे ही Can दोस्त लोग हैं। ठीक है, Yes. क्या कि अब मैं तो स्ट्रगल कर रहा था मेरा क्लास चलाने के लिए। ठीक है, आई वाज स्ट्रगलिंग, अभी भी स्ट्रगल ही करता हूँ। अभी अपने सबके सब बच्चे लगते हैं, जो भी रेगुलर, सबके सब जॉब पे लग रहे हैं, 2-4 महीने इधर उधर। ठीक है, अच्छे पैकेज पे लग रहे हैं, 8 लाख 10 लाख, मिनिमम 7 लाख का पैकेज है अपना। ठीक है, जो, Yes. ठीक है, तो Yes, ऐसे sir. सबके सब लग रहे हैं। Yes, sir. अब हो क्या रहा है कि आ, अभी वो परमेश्वर को बोलेगा सर मेरा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तुम नहीं हो, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर वॉज कमिंग। Yes, sir. ओके, 1 साल पहले वो अतुल लगा था, अतुल ने लगाया, अतुल बोले लगा लो यहाँ पे। परमेश्वर की मेरी कंडीशन टाइट है, ये वो है, सर ऐसा ऐसा पैसा खर्च कर दो। अतुल बोल रहा है कि सर उसका, मैंने बोला ठीक है 5,000 पर मंथ दे देगा। अभी उस टाइम पे मेरे को भी जरूरत थी, मैंने बोला लगा देंगे 5। तो लेकिन नहीं नहीं, वो उसको क्या हुआ कि
किसी ने ऑफर दे दिया शायद कहीं बैंगलोर से कि 1 महीने के अंदर जॉब 100%, तुम सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग का क्लास कर लो, 100% जॉब, 100%, राइट? तो उन लोगों को ले यहाँ पे पैसे भरने के लिए पैसे नहीं रहता, बट वो जॉब गारंटी लेता है ना, वहां पे 50,000 को भर देंगे कहीं से लोन निकाल के, Yes, sir. Yes. है ना? पैसा भर दिया वहां पे, और वो फोन नहीं उठा रहा 1 महीने के बाद में आदमी, ना इनको रिज्यूमे पता। ये सबकी कंडीशन है, ये उसकी कंडीशन नहीं। जिन्होंने भी क्लास लगाया है, ठीक है, जिन्होंने भी क्लास लगाया वो फोन नहीं उठाते बाद में, उनका फी उनको आ गया 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख तक लोग हैं अपने पास में, ठीक है। 6,000 में 4.5 लाख भरा, अब मेरे से वो 5,000 में ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, तो मेरे को जॉब लगवा दो, मैं दे दूंगा आपको पैसा, ठीक है। सो सीधे द थिंग इज कि वहां पे भर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसको ऑफर दिया था 5,000 भर कंटिन्यू, अब तक जॉब पे होता था कंफर्म। दैट इज थिंग, टाइम भी गया, पैसा भी गया, दिमाग भी खराब हुआ, और देर इज नो गारंटी। उसको जबरदस्ती पकड़ के वो अतुल लेके आया हुआ, ठीक है, होगा नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है, 80% होना चाहिए, 80-90%। में जॉब गारंटी नहीं लेता किसी की, क्लियर? तो वो चीज है कि जहां पे जिसका डिमांड है वहीं पे फ्रॉड होता है, ठीक है। अभी दूध का बहुत डिमांड है, तो मार्केट में 70% दूध, पुणे में देखो तो क्या है, जो पनीर और मिल्क वो नकली है। 80-90 पनीर तो 90, पनीर तो 100% डुप्लीकेट है मेरे को लग रहा है, यस ठीक है, सर। 100% डुप्लीकेट, उसका डिमांड है। और आपको चाहिए पनीर, वो देता है सस्ते में मिल जाता है, जाओ वहां पे, ठीक है। तो एट द एंड वही चीजें पेट में जाने के बाद में फिर वो पेट खराब कर देगा, क्लियर? तो yes. बाकी लोग भी जो हो, अभी जैसे कि अभी ये रामकिशन के 1 राउंड क्रैक हो गया, ठीक है, पढ़ाई की नहीं फिर भी क्रैक होगा उसका, है ना? ठीक है, मतलब पढ़ाई की उसने, बट उसका इतना प्रिपरेशन नहीं जितना मेरे को लग रहा, मतलब होगा भी, आई नो, मैंने बहुत दिन से उसका मॉक नहीं लिया तो मेरे को पता नहीं, अभी लेना पड़ेगा, बट उसका होगा इजीली क्रैक पहला राउंड, ओके। तो फिर भी मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम उसी कंपनी में जाओ, कि मेरे को उनकी मतलब केयर है कि भाई पहले अच्छे से करके जो ना अंदर जाके प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मेरे को क्या है, उसको लगा दो, घुसा दो अंदर, उसको प्रैक्टिस करवा के, और दे देगा वो मेरे की फी, फिर 2 महीने वो उसको फायर करे, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना था, राइट? बट मैंने उसको अभी फोर्स नहीं किया कि तुम दो ही और तुम जाओ ही, मैंने बोला ठीक है प्रैक्टिस के लिए जाओ वहां पे, क्लियर? सो दैट इज द थिंग। तो जो भी एब्सेंट रह रहे, इनसे उनका इंटरेस्ट दिख रहा है कि कितना इंटरेस्ट है और कितना नहीं है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स अपने पास में उनको बहुत गंदा कंडीशन है, फिर भी वो क्लास कर रहे हैं, और किनका कुछ अच्छा है फिर भी वो रिकॉर्डिंग पे भरोसे में बैठे हुए हैं। जो जॉब पे उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो जॉबलेस है उनको तो लाइव रहना ही चाहिए, क्लियर? क्लियर? Yes, sir. और जॉब पे तो सभी लगेंगे, और जो एब्सेंट रह रहे हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं, वो तो सीधा मतलब टिक भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, पर उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत मतलब सब मतलब दिमाग से लेके पेट खराब हो जाएगा उनका पूरा, ठीक है। दिमाग खराब होगा तो नींद नहीं लेंगी, और नींद नहीं आएगा तो पेट खराब होगा, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर? यस सर। ओके, दिमाग नहीं खराब होना चाहिए सर। हाँ वही तो, अरे वो बहुत टेंशन रहता है, ठीक है, पैकेज तो आता है 10 लाख का, है ना, तो वो सो नहीं पाता, ओके, पूछ लो, राइट? और जो इंटरेस्टेड है उनको थोड़ा सा इशू होता है, बट वो मैनेज कर लेते एक 4-5-7-8 महीने के अंदर, और अपने पास में जो कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है वो तो कर ही लेंगे कैसे ना कैसे, ठीक है। जिनका खराब है उनको तो टेक्निकली तो स्ट्रांग बनो आप, ठीक है, टेक्निकली स्ट्रांग बनो, बात करना सीखो, अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, वो करना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम्स को अभी होता है क्या कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, कि हाँ आ रहा है, सब आ रहा है, चल रहा है, क्लास चलने दो, आ रहा है, मतलब अपने क्लास की भी बात करूं, मैं अदर की बोल रहा हूँ, और अपने भी कर रहा हूँ। जैसे मैं कुछ मॉक ले रहा हूँ अभी कुछ स्टूडेंट्स के, तो उनको पता ही नहीं कि उनको मतलब कुछ कोई टॉपिक है जैसे आईओसी कंटेंट उनको आता नहीं है, ठीक है, उनको उस पर बोलना नहीं आता है। इंटरव्यू में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज आईओसी कंटेंट, सो दे आर नॉट एबल टू टॉक ऑन दैट, बट उनको आता है, ऐसा उनको लग रहा था, उनको आता भी होगा, ठीक है, बट वो बोल नहीं पा रहे। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक पे आपको बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊप्स पे आ रहा है, दैट इज फाइन, कलेक्शन पे आ रहा है, दैट इज फाइन, और कौन सा बचा हुआ है, हाइब्रिड बचा हुआ है, हाइब्रिड को उठाओ, क्वेश्चन निकालो और फॉर्मेट कर दो आंसर, ठीक है। रन टाइम पे होने वाला है नहीं, ठीक है, ये अपनी एग्जाम नहीं है, क्लियर? मतलब जनरली ये टारगेट मत रखो कि मुझे आ रहा है सिर्फ, हाँ मेरे को सब सर ने जो पढ़ा है मेरे को सब आ रहा है, मेरे को टाइप करना भी आ रहा है प्रोग्राम, ठीक है। ये अजम्पशन मत रखो, इतना इनफ नहीं है, ठीक है, आपके लिए वो ज्यादा होगा, बट इतना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए इनफ नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जो आ रहा है वो आप बोल पा रहे हो, दैट इज द मेन पॉइंट,
ठीक है, इसलिए अपने जो रियल टाइम जो रियली जिनको रियल एक्सपीरियंस है 5-5 साल का, उनको 1 साल लग जाता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये 2 महीने में अचीव कर लिया, गेटिंग, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा रेडीमेड, उनको जो साल भर लगता है ना, 1.5 साल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो मैंने पकड़ के आपके हाथ में रख दिया, इसलिए 2 महीने के अंदर हो गए चीजें। तो अगर आप भी रियल एक्सपीरियंस रहते 4-5 साल के और आपको भी स्विच करना, तो आपको भी 7-8 महीने लग जाते, 50 इंटरव्यू देने पड़ते थे। यस सर, यस राइट। क्लियर? तो अभी आपको लग रही इजी, बट बाकी लोगों के लिए बहुत हार्ड चीज है। कल मैंने एक 3.5 साल वाले का एक इंटरव्यू लिया, मॉक इंटरव्यू। ठीक है, वो कुछ आया था सर मेरा, ले लो 15 मिनट के लिए लिया मैंने उसका मॉक इंटरव्यू। 3.5 साल वाला, कम्युनिकेशन बहुत फाड़ू था, अच्छा था उसका, कैपजेमिनी था वो। मैंने बोला थ्रेड के बारे में, यस आई नो थ्रेड। मैंने बोला टेल मी, वी कैन क्रिएट अ थ्रेड इन द टू बाय द टू वेज। कौन कौन सा? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थ्रेड क्लास एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम द रनेबल क्लास, बट आई एम प्रिफरिंग इम्प्लीमेंट फ्रॉम द रनेबल। मैंने बोला क्यों? वो नहीं पता। मैंने बोला भाई तू खुद से मुंह से बोल रहा है इम्प्लीमेंट फ्रॉम द रनेबल, आई एम प्रिफरिंग, खुद ही बोल रहा है पहले से, तो क्यों भाई? वो तो पूछेगा ना कि अगर तुम्हें रनेबल पसंद है तो क्यों पसंद है ना? तो नहीं आ रहा है उसको, ये भी नहीं आ रहा है, अक्ल नहीं है। कभी 3.5 साल का 3-4 महीने से इंटरव्यू दे रहा है। सो वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट कहीं पे मिलता नहीं है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो लोग है ना यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, वो इसके अपने जो डालते हैं ना मॉक इंटरव्यूज यूट्यूब पे, वो देख देख के क्वेश्चन कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे, खुद देंगे, उसको टाइम लग जाता है बहुत। ठीक, उसमें भी वो परफेक्ट आंसर नहीं आता। क्लियर? So that is saying we are sitting here to get the expertise, not for कि to get the job only। expertise ले लो, उसके बाद में जॉब आ जाता है। ठीक है, और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो ऐसे बंदे हैं ना कि एक्सपर्टीज ले रहे हैं अपने यहाँ पे, उनको खुद को कॉन्फिडेंस है, वो जॉब छोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, 4 लोगों ने रिजाइन डाला है क्लास के वजह से कि सर कॉन्फिडेंस आ गया, हम डाल देते रिजाइन, ठीक है, हमें जॉब मिल जाएगा। क्लियर? मेरे को जॉब गारंटी लेने की जरूरत है नहीं। गेटिंग और नॉट? जॉब गारंटी लेने की जरूरत नहीं, महीना भर बैठ लो, आपको आ जाएगा क्या है, तो आपको समझ जाएगा आपका फ्यूचर क्या है। तो क्लियर? और जिनको नहीं आ रहा है वो छोड़ भी देंगे, चलो कि हो नहीं रहा है, बट छोड़ो मत, करो इस चीज को। क्लियर? ठीक है, दैट इज थिंग। ओके, यस सर, यस यस। और सबको एक सजेशन है कि मैंने आपके सामने जो थ्रेड वाला जो टाइप किया, थ्रेड वाला प्रोग्राम जो अभी किया ना लोकल थ्रेड के लिए, उससे पहले भी 4 बार टाइप किया होगा, राइट? हर क्लास में वो टाइप कर रहा हूँ मैं, आपको ही उतनी बार कम से कम टाइप करना है। यस सर। ठीक है, करो आज। आपको समझ गया, दैट इज फाइन, वो समझा, बट खुद से टाइप करो और टाइप करना। अगले 1 महीने तक सब ये प्रोग्राम टाइप करते रहो, देन आपका स्पीड अच्छा खासा बढ़ जाएगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। ओके, आप टाइप कर पाते हो, दैट इज अलग डिफरेंट, बट लॉजिक कैसे लिख रहे हो, मतलब इफ कंडीशन ही गड़बड़ कर रहे हो, 0 लिखो या 1 लिखो वहां पे, राइट? सो वो चीजें होनी नहीं चाहिए। अभी फीडबैक वही आ रहे, इंटरव्यू सबके क्रैक हो रहे हैं, बट यू हैव टू इंप्रूव द कोडिंग स्पीड, ऐसा डायरेक्टली उनका फीडबैक आ रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, और जो स्ट्रिंग के जो पीडीएफ दिए मैंने वो चालू कर दो, और ये भी चालू कर, जो मैं लिखा है ना चालू कर दो सीधा। और ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, जैसे कि अपन कॉलेज में रहते हैं तो 4 दिन के अंदर हम पढ़ाई कर लेते हैं और एक पेपर भी निकाल देते हैं, वो 4 दिन में हो जाता है प्रोसेस, रट्टा मार के कुछ भी लिख दिया तो उसको सामने वाले को क्या लेना देना है। ठीक है, तो वो चीजें होने लगती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ 4 मंथ कम से कम। ये तो बहुत फास्ट जा रहे हैं हम, इतने तो साल भर चाहिए इसको, बट हम जा रहे हैं फास्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डे 1 से। तो बैच 6 या 7 में कुछ लोगों ने गलती की, वो आप मत करो। बैच 8 वालों अभी भी 2 महीने अपने पास में है, तो उसमें कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करो इस केस में। क्लियर संजोग? ठीक है, डोंट टेक लाइटली। ओके, मैं तो बोलने वाला, मेरे क्वेश्चन से, मेरी आंसर से क्यों नहीं हो रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उल्टा बोल रहे हो, वहां पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोल रहे हो, है ना? और वो तो गलती होने वाली, क्योंकि आपने वो बोला ही नहीं कभी। अब डायरेक्टली फर्स्ट टाइम बोल रहे हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट निकलने वाला ही है। ठीक है, चलेगा। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड, विल मीट बाय टुमारो। ठीक है, हाँ, एक बार एक काम करते, एक रिवाइज कर ले थ्रेड लोकल को। ओके, सो थ्रेड लोकल, ओके, सो फर्स्ट अपन सिंक्रोनाइज कीवर्ड को रिवाइज करते हैं। आपको बोलना है कि ओके आई नो द मल्टी थ्रेडिंग, फर्स्ट थिंग। ओके, आई नो दी मल्टी थ्रेडिंग में 2-3 चीजें बाकी है, वो मेथड है यील्ड और स्लिप, यील्ड और ज्वाइन करके, वो बता दूंगा कल। ओके, सो लेट्स रिवाइज सिंक्रोनाइज। ओके, सो टेल मी, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ टू क्रिएट थ्रेड। तीन वेज है, ठीक है, कॉलेबल, रनेबल और थ्रेड क्लास। व्हिच वन इज प्रेफर्ड? By June no, runnable. depends on we can go for the runnable, but if you want written,
हाँ देन वी कैन गो फॉर दी कॉलेबल कॉलेबल। इवन कॉलेबल के अंदर भी आप कॉलेबल प्रिफर करना है आपको यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यस इवन कॉलेबल के अंदर भी आप मल्टीपल इंटरफेस, वो भी इंटरफेस है ना, आप वहां पे भी यस मल्टीपल इंटरटेंस का फायदा उठा सकते हो। यस ओके, सर इफ यू वांट रिटर्न देन वी कैन गो फॉर कॉलेबल, इफ नॉट देन वी कैन गो फॉर रनेबल। ये एक चीज हुई। सो दीज आर देयर आर द थ्री वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, फर्स्ट क्वेश्चन। देन स्टार्ट मेथड, डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट मेथड एंड रन मेथड। ओके, जो ओवरराइडिंग की केस मैंने ली थी वो आपको करनी है, सेकंड क्वेश्चन। देन थ्रेड लाइफ साइकिल, तीसरा क्वेश्चन। ओके, और उसको अच्छे से बताना है, मेरे को समझा थ्रेड लाइफ साइकिल क्या है, उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, उसको बताना है, वो फॉर्मेट कर लो। क्लियर? सो ये तीसरा क्वेश्चन। देन सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। डू यू नो सिंक्रोनाइजेशन? डू यू नो डेडलॉक? ठीक है, डू यू नो रेस कंडीशन? ठीक है, जो डेटा इनकंसिस्टेंसी बोली ना मैंने, दैट इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। whenever there is a data inconsistency, okay, if multiple thread are accessing to any method and or any variable, जैसे हमने लिया string name, उसको multiple threads उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट इज synchronize. So do you know synchronization? Yes, to provide thread safety we can go for the synchronize keyword. Synchronize keyword is used at the block level or method level. Okay, when we make it synchronized, then only one thread can access at a time to that method or that block. There are basically, it is using two types of lock. Okay, one is class level lock, another is a object level lock. Okay, if the method is non-static, then that thread needs a object level lock. Non-static, okay, object level lock. If method is a static, then we need class level lock. Okay, class level lock. Okay, but there is a problem. Okay, definitely that synchronize is providing thread safety, but there is a problem. What is the problem? The problem is performance, because only one thread can access at a time. So we can also use or take a benefit of some other features of the Java to avoid these things. So what are these things? We can go for the thread local. We can go for the thread local also, or we can go for the reenter locks. Okay, lock भी वही lock ही करता है बेसिकली, बट वो थोड़ा अलग बाकी की जो चीजें हैं वहां पे देता है. सो वी कैन गो फॉर द थ्रेड लोकल और लॉक्स कंसेप्ट. ओके, रीएंटर एंड लॉक कंसेप्ट टू अवॉइड द सिंक्रोनाइज कीवर्ड. डेटा इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, टू अवॉइड द सिंक्रोनाइज कीवर्ड. क्लियर? सो आपको अच्छे से बताना. अभी ये पैराग्राफ बता दोगे ना, वो खुश हो जाएगा कि अच्छा इसको लॉक तक, रीएंटर लॉक तक, थ्रेड लोकल तक सब कुछ पता है. क्लियर? What is the race condition? The race condition means if we are declaring any variable, let's say string user ID, and multiple thread are keep changing the values. Okay, so in that case, that race condition will be there, because that every thread is coming with the specific value, but that string name, that variable is shareable for all the threads. मतलब जो name है ना string name, वो shareable है सब threads के लिए. वो जो वेरिएबल है, थ्रेड 1 तो नेम की वैल्यू समझो जॉन 1 लेके आया, दूसरा जॉन 2 लेके आया, बट वेरिएबल तो एक ही है, उसको वैल्यू चेंज हुई तो कॉमन है दोनों में. ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर दी थ्रेड लोकल. क्लियर? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन था बैच 6 के कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, 7 के कुछ एब्सेंट है. अब वो रिकॉर्डिंग कब देखेंगे? 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, है ना, और कब उनको कॉन्फिडेंस आएगा? इंटरव्यू गया. ठीक है, उस केस में मतलब वही है कि जहां पे 10 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू होना था, वहां पे 10 लग जाएंगे उनको, है ना. गमाओ अपना टाइम वहां पे इंटरव्यू के अंदर. सो उसमें कुछ कर नहीं सकते. ओके, कैन वी कॉल स्टार्ट मेथड 2 times on the same thread? No, sir. No, No, sir. sir. It will give illegal That's it. thread exception. Clear. Wait, notify, notify all. There are the that these are the 3 methods present in the object class, present inside the object class. Okay, and Yes. then object class. And second thing is it provide these are the thread intercommunication. It is used for the thread intercommunication. Okay, communication between the 2 threads. We can use that Yes, sir. method. Okay, so that these are the method present in the object class. That's it. और एक क्वेश्चन आता है कि why these methods present inside the object class, not on the thread. Yes. क्वेश्चन क्या बोला मैंने? Why Why these methods? these methods are present in object class, Object. not in the thread class. Yes. जैसे thread dot sleep है, Yes, sir. वैसे क्यों नहीं? तो उसका आंसर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो. जो मैंने इसका एग्जांपल लिया था किसका, कंज्यूमर प्रोड्यूसर का, उसमें जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और उससे
डिराइव करो आंसर, ठीक है। Yes, और sir. ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मार्केट में बहुत कम लोगों को आती है, बहुत कम लोगों के पास में ये चीज रहती है। तो डेफिनेटली आपके पास में ही मतलब किसी को आता नहीं और आपको ही आता है ये चीजें, तो डेफिनेटली आपको डिमांड तो बढ़ेगा, ठीक है। Yes, sir. डिमांड बढ़ेंगी। और ये 6 वाले जो है ना, बैच 6 वाले वो तो गए काम से सब, ठीक है। इट इज वेरी मतलब क्या बोल सकता हूँ कि वेरी बैड थिंग कि जब जॉब मिलने का टाइम आ रहा है वही तभी वो absentee मार रहे हैं, ओके, तभी वो absentee मार रहे हैं। चलेगा, एनीवे, सो आई थिंक वी आर गुड, विल मीट बाय टुमारो एंड Tomorrow. हैव अ गुड डे, ओके। Sir, बोलो। एक डाउट है, जैसे कि अभी हमने